Our today's topic is integrated rate equation. We have already discussed that for a general reaction of the type AA plus BB, after reaction it will form product. For this reaction we can write rate is equal to change in concentration of reactant divided by change in time, and this will be equal to K, and product of the concentration of the reactant is raised to power on which rate of reaction actually depends, that is alpha and beta. This form of the equation is called differential rate equation. This form of the reaction is called differential rate equation, but it has limitation. लेकिन इस इक्वेशन की लिमिटेशन है. This form is not convenient to determine the rate law and you can say order of reaction. Why? Because instantaneous rate has to be determined from the slope of the tangent. अगर आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए you have to determine the slope of the tangent at any time t in the graph between concentration versus time. अगर आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंस्टेंटेनियस रेट हैज़ टू बी डिटरमाइंड, एंड दैट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी टाइम t in the graph of concentration versus time. And this type of measurement is not only inconvenient but also lacks accuracy. So how can we overcome this difficulty? In order to overcome this difficulty, we integrate this equation. ये जो हमारे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. To overcome this difficulty, we integrate this differential equation for the reaction of any order. किसी भी order की reaction के लिए हम इसको integrate करेंगे, and by doing so we get an equation relating directly to the experimental data like time, concentration at different times and rate of constant. इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल डेटा जैसे टाइम हो गया या रेट कांस्टेंट हो गया, कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम्स होगी, उनको हम डायरेक्टली उस इक्वेशन के अंदर पुट करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Integrated rate equation for zero order reaction. पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं हम. A reaction is said to be zero order if the rate of reaction is independent of the concentration of all the reactants. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा उसे हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन. या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी और जो रिएक्शन का रेट रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट. That is a reaction in which the concentration of the reactants don't vary or change with the time and the reaction rate becomes constant throughout and becomes uniform throughout is said to be zero order reaction. And zero order reaction generally we studied these reactions in two categories. There are two types of reactions which have been found to be zero order reaction. One is photochemical reaction and second is
heterogeneous reaction. फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरली कौन सी होंगी? फोटोकेमिकल रिएक्शन हम किन्हें कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ फोटोन, आर कॉल्ड द फोटोकेमिकल रिएक्शन. And in this case we are going to take the example of combination of hydrogen gas and chlorine gas in presence of sunlight. The combination between hydrogen and chlorine gas in presence of sunlight may be studied by enclosing these gases in a tube and inverting the tube in a trough of water. For this, हम एक ट्यूब लेंगे और इस ट्यूब के अंदर हम फिल करेंगे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस और इसे हम क्या करेंगे? इन्वर्ट कर देंगे ए ट्रफ ऑफ वाटर में. ये हमने वाटर लिया और वाटर में इस ट्यूब को हम इन्वर्ट करके डाल देंगे. इस ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे और ऐसे हम इसमें डाल देंगे वाटर में. तो इसमें वाटर राइज करेगा कुछ, ये वाटर लेवल है इसमें, और यहाँ पर इसमें गया H2 प्लस Cl2 एंड दिस इज लाइट. अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl विल फॉर्म. जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बनेगा क्या? HCl बनेगा. इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी और यहाँ पर HCl गैस बनेगी और जो HCl बनेगा ये डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर. When the reaction takes place between hydrogen and chlorine, HCl is formed which dissolved into the water and the level of water in the tube rises. यहाँ पर देखिए पहले इतना लेवल था यहाँ पर पानी का, अब H2Cl2 की रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या बना है? HCl इस पानी में डिजोल्व होगा जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पर वाटर लेवल ट्यूब में राइज कर जाएगा. पहले इतना था वाटर लेवल, अब इतना हुआ, वाटर लेवल राइज कर गया. तो अब देखिए रिएक्शन होगी तो H2 और Cl2 जो हैं, H2 और Cl2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या H2 और Cl2 की जो अमाउंट होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. बिकॉज H2 और Cl2 दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ये क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे. और जो यहाँ पर HCl बनेगी ये HCl इस वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और वाटर में डिजोल्व होगी तो वाटर लेवल क्या करेगा? अप आएगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा. दस दो द क्वांटिटीज ऑफ H2 एंड Cl2 डिक्रीजेज बट देयर अमाउंट्स पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन सेम. H2 और Cl2 की क्वांटिटी डिक्रीज करेगी क्योंकि ये कन्वर्ट होकर के किस में जा रहे हैं? ये कन्वर्ट होकर के HCl बना रहे हैं. तो इनकी क्वांटिटी तो डिक्रीज करेगी बट देयर क्वांटिटीज पर यूनिट वॉल्यूम remains constant, or in other words you can say the concentration of the hydrogen and the chlorine per unit volume in the gaseous phase will not change, will remain constant and it will not change with time. कंसंट्रेशन क्या है? इनके अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इनकी अमाउंट डिक्रीज कर रही है लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ से वाटर लेवल भी इंक्रीज कर रहा है. तो ये जो आपके पास स्पेस है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है. पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन इतने स्पेस में थे तो वॉल्यूम ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही HCl बना वाटर लेवल इंक्रीज किया तो यहाँ वॉल्यूम भी डिक्रीज कर गई इनकी क्वांटिटी के साथ साथ. सो वी कैन से क्वांटिटी ऑफ दीज गैसेज पर यूनिट वॉल्यूम और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज पर यूनिट वॉल्यूम इन द गैसियस फेज विल नॉट चेंज विद द टाइम एंड सो द रेट ऑफ रिएक्शन विल रिमेन कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड सच रिएक्शंस आर सेड टू बी ऑफ जीरो ऑर्डर. और ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहेंगे. फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो होमोजीनियस.
इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है जो यहाँ पर आपने स्टडी किया, दिस इज होमोजीनियस। This is homogeneous reaction because all the reactants and products remains in the same physical state. यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस में हैं, HCl भी गैस में है, so that this reaction is homogeneous reaction. Now we will take the second example. Second example is of heterogeneous reaction. हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन हम जनरली किन को कहते हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड द कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। एंड हियर वी आर टेकिंग टू एग्जाम्पल। First we are taking decomposition of ammonia. Decomposition of ammonia on the surface of metal like tungsten, molybdenum or platinum. And second example, we are taking decomposition of hydrogen iodide on the surface of gold. Decomposition of hydrogen iodide on the surface of gold. ये दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ये कहते कि आपके पास एक ये वेसल है, वी आर टेकिंग दिस वेसल। समझना इस चीज़ को थोड़ा। ये वेसल है और इसके अंदर आपने ये सपोज अमोनिया गैस फिल कर रखी है, इसमें अमोनिया गैस फिल कर रखी है और इसके अंदर एक कैटलिस्ट आपने डाला हुआ है। यू आर हैविंग ए कैटलिस्ट वेदर इट इज़ मोलिब्डेनम, टंगस्टन और प्लेटिनम। सपोज दिस इज द कैटलिस्ट। दिस इज कैटलिस्ट। तो क्या होगा, ये अमोनिया गैस जो है ये इस कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या हो जाएगी? अमोनिया गैस जो है ये कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी, इस कैटलिस्ट के सरफेस पे कंप्लीटली एडजॉर्ब हो जाएगी। इन दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द गैसियस रिएक्टेंट दैट इज अमोनिया। अब यहाँ पर क्या होगा, some of the gas or you can say some of the ammonia are converted into product में convert हो जाएगा ये, and at the same time instantaneously some new molecules of the reactants from this vessel, some new molecule of the reactant that is ammonia get adsorbed on the surface and you can say take up their position of the molecules which have been converted into product। लोग यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर इस वेसल से अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे आ जाएंगे और जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में गए हैं उनकी पोजीशन ले लेंगे। द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज कंप्लीटली कवर्ड विद द गैस or you can say with the ammonia in this case, and some of which are converted into the product, and instantaneously some new molecules of the reactant take up their position. These are the new molecules which take up their position of which the molecules which have been converted into product, and we can say as a result the concentration of reactant, that is concentration of ammonia on the surface of the catalyst remains constant
So the rate of reaction remains uniform and it doesn't change irrespective of the amount of gaseous reactant taken in this vessel, because the amount of ammonia on this surface of the catalyst remains constant throughout. So the rate of reaction will also remains constant and it doesn't change irrespective of the amount of gaseous reactants taken in this vessel. So this is the second example of the zero order reaction. Now we are going to discuss the integrated form of zero order reaction. Integrated form of the zero order reaction. Suppose we are having a reactant A. We are having a reactant A and this converted into product. Rate law for zero order reaction is change in concentration of reactant divided by dt is equal to, you can write change in concentration of A, negative sign indicate concentration decrease, D is the change and C is the concentration, A is the reactant. A, change in the concentration of A divided by dt, and this will be equal to rate constant and concentration of A and its order is 0, so raised to power 0, and you can write is equal to K. Rate law for zero order reaction is this in the differential equation. We can write like this. Let C naught is the concentration of A when time is equal to 0. When time is equal to 0, or you can say this is the initial concentration. This is the initial concentration of A. C naught is the initial concentration of A, and C is the concentration of A at any time t. At any time t. C naught is the initial concentration and C is the concentration at any time t. Then the integrated form of say this equation is first, इस इक्वेशन को आपने फर्स्ट का है, देन द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कैन बी derived as follows. Can be derived as follows. You are having this equation, change in concentration of A divided by dt is equal to K. Just rearrange it. You can write this like change in concentration of A is equal to K dt. अब इसको इंटीग्रेट कर दे, एक तरफ आपके पास कंसंट्रेशन टर्म्स है, एक तरफ आपके पास टाइम टर्म है, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करें कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, सी नॉट टू सी माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टाइम टर्म 0 से t टाइम जा रहा है के डी टी, एंड यू कैन राइट concentration of A from C naught to C and K is the constant. बाहर लें इसको, एंड टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, लिमिट क्या है 0 to T, एंड यू कैन राइट माइनस C naught is equal to K T minus 0 is equal to
KT and you can write minus minus plus हो जाएगा, then you can write C naught minus C is equal to KT and K will be equal to C naught minus C divided by T. This is the integrated rate equation for zero order reaction. Integrated rate equation for zero order reaction. And you can also write as C naught is the initial concentration. In this case, C naught is the initial concentration and C is the concentration at time T. So C naught minus C is equal to X. You can write. ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन है. सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन हम आपको गए कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास 0.5 m है और फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास 0.2 m है. तो 0.5 माइनस 0.2 आपके पास क्या आएगा, 0.3 m. ये क्या होगा, ये वो कंसंट्रेशन होगी जो डिकम्पोज हो गई, जो रिएक्ट कर गई. तो C नॉट माइनस C आपको क्या देगा, X देगा. और X यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, X विल बी, X क्या आएगा यहाँ पर, decrease in concentration of A in time T. T टाइम में जो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गई वो आ जाएगी. एंड यू कैन राइट K इज इक्वल टू X बाई T. ये भी आप लिख सकते हैं. व्हाट इज X? देखिए इनिशियली सपोज आपके पास कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन ए की कितनी रह गई, क्योंकि हम रिएक्शन में ए को कन्वर्ट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट में. तो किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन सपोज 0.2 रह गई, तो कितना रिएक्ट कर गया, इनिशियल 0.5 फिर माइनस 0.2 कर दो तो एक्स क्या आ गया, 0.3. और ये क्या आ जाएगा, ये वो कंसंट्रेशन है कि जो रिएक्ट कर गई, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन टाइम टी. वी कैन राइट. एंड ये इक्वेशन आपके पास आई है. K इज इक्वल टू C नॉट माइनस C डिवाइडेड बाई T. और इज इक्वल टू यू कैन राइट X बाई T. ये भी आप लिख सकते हैं. इसको देखिए, अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा आपके पास, यू कैन ऑल्सो राइट KT इज इक्वल टू C नॉट माइनस C एंड C विल बी इक्वल टू माइनस KT प्लस C नॉट. वी कैन ऑल्सो राइट, ये भी आप लिख सकते हैं. एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y is equal to mx plus c. In this case this is y and this is m and this is x and this is c. So you can write y is equal to mx plus c. So this is the this is an equation of straight line, that is y is equal to mx plus c, and any reaction of zero order must obey this equation. Keep it in mind. Any reaction of zero order must obey this equation. कोई भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी वो इसको ओबे करेगी. और अगर यहाँ पर हम प्लॉट बनाए, अगर यहाँ पर हम प्लॉट ड्रॉ करें किस किस के बीच, प्लॉट ऑफ C वर्सेस T, इनके बीच अगर हम प्लॉट ड्रॉ करें तो प्लॉट देखिए कैसा आएगा. देन वी विल गेट स्ट्रेट लाइन. इन प्लॉट वी विल गेट स्ट्रेट लाइन. ये वाला प्लॉट हमें ऑब्टेन होगा इसके अंदर. अगर हम प्लॉट यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे, एक प्लॉट ड्रॉ करें तो ये वाला प्लॉट हमें ऑब्टेन हो जाएगा. अब इस प्लॉट के अंदर इसको क्या लेकर के चलें आप, हियर वी टेक C and in this axis T.
एंड व्हाट विल बी द स्लोप? एज यू नो दैट इन दिस इक्वेशन ये यहाँ पर y आपके पास y और x के बीच अगर आप ग्राफ बनाते हैं y और x के बीच तो m यहाँ पर आपको क्या देगा? व्हाट इज m? m इज द स्लोप, यू नो. एंड व्हाट इज c? c इज द intercept on y axis. So here we plot a graph between c and t, then this will be the slope and this will be the intercept. So we can write what will be the slope? Slope is equal to minus k. Slope will be equal to minus k, and you can say k will be equal to minus slope of the line. Slope of the line. And what is this? What is this? This is C नॉट, दैट इज इंटरसेप्ट. ये वैल्यू अगर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अगर ये वैल्यू हम देखते हैं तो ये आपको क्या देगा? C नॉट. C नॉट दैट इज इंटरसेप्ट ऑन द कंसंट्रेशन एक्सिस. तो दिस इज द ग्राफ फॉर integrated rate equation for zero order reaction, and any reaction of zero order must obey this equation. अब आपसे एग्जाम में ग्राफ दे देंगे यहाँ पर C और यहाँ पर T करके, और ये ग्राफ बना करके आपको देंगे और आपसे ये पूछ सकते हैं ये ग्राफ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का और इसका स्लोप क्या है. देन द स्लोप क्या आ गया आपके पास? ये ध्यान रखेंगे, ये आपके पास स्लोप आ गया. स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. और वैसे आप देख रहे स्लोप नेगेटिव है तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास आ जाएगी. इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन सी वर्सेस टी, देन द ग्राफ विल बी a straight line with slope is equal to minus k, and intercept on the concentration axis is C naught. Okay, now देखिए one more graph. We are taking one more graph. As you know that rate is independent of concentration. As we know that rate is independent of concentration. रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. अगर हम ग्राफ बनाएं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, अगर इसके बीच हम ग्राफ बनाते तो देखिए ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा. As we know that rate is independent of concentration, so if you plot a graph between rate and concentration, that graph will be a straight line. That graph will be a straight line parallel to the concentration axis. तो इसको हम लेकर के चलते हैं रेट, और यहाँ पर हम लेंगे कंसंट्रेशन. तो देखिए ये ग्राफ आपको दे सकते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो ये ग्राफ आ जाएगा. अब देखिए ग्राफ की आपको ये नहीं देखना है कि ग्राफ की शक्ल क्या है, ये नहीं देखना है आपको. अब देखिए इसी टाइप का बिल्कुल ग्राफ आपको फर्स्ट ऑर्डर में भी मिलेगा, लेकिन वो ग्राफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में नहीं मिलेगा, आपको हाफ लाइफ में मिलेगा. हाफ लाइफ क्या है ये अभी आपको बताएंगे. तो ग्राफ की शक्ल नहीं देखनी, आपको ये भी देखना है ग्राफ किस किस के बीच है. तो यहाँ पर दो ग्राफ हमने पढ़े, एक ये वाला ग्राफ आपने किया है, ये वाला ग्राफ क्या था इसका? जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसके लिए किया है हमने, और ये वाला ग्राफ आपके पास रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के लिए आ गया. तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन आपको पता है कि जो रेट होगा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा. कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करें या कंसंट्रेशन डिक्रीज करें, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रेट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू आउट, कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा. राइट. वन मोर थिंग, देखिए आपने ए रिएक्टेंट लिया था और ये कन्वर्ट हुआ था आपका प्रोडक्ट के अंदर. अब ऊपर जो आपने इक्वेशन बनाई है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी, वेयर सी नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी. अब अगर हम यहाँ पर जो रिएक्टेंट है ये ए गैसियस रिएक्टेंट है, और अगर इसके हम मोलर कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को मेजर करते हैं, for a zero order reaction when reactant A is gaseous and pressures
are measured instead of molar concentration, then we will get K is equal to P नॉट माइनस P डिवाइडेड बाई T। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये आ जाएगी जीरो ऑर्डर के लिए। जैसे यहाँ पर C नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, C naught is the initial concentration. So here P naught is the initial pressure. What is C? C is the concentration of A at any time T. What is P? P is the pressure of A at any time T. And you can also write P naught is the initial pressure and P is the pressure at any time T. And then P naught minus P will give the decrease in pressure in time T. What is small p? Small p is the decrease in pressure of A in time T. This is decrease in pressure of A in time T. So we can write K is equal to P by T. We can write K is equal to P by T. What is P? P is the decrease in pressure of A in time T. And from here we can write decrease in pressure is equal to KT. And K is the constant, so you can write P is directly proportional to T. So we can say decrease in pressure of gaseous reactant A is directly proportional to time. हम ये भी यहाँ पर कह सकते हैं. Now we will take half-life period. Now we will take half-life period. What is half-life period? This is the time in which half of the substance that is reactant, half of the substance that is reactant has reacted. So what is the half-life period? This is the time in which half of the substance that is reactant has reacted. वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का आधा रिएक्ट कर जाए वो टाइम कहलाएगा हाफ लाइफ पीरियड. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि आपके पास रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट आपके पास 6 ग्राम है, तो वो टाइम जिसके अंदर इसका 3 ग्राम रिएक्ट कर जाए, जिस टाइम में इसका 3 ग्राम रिएक्ट करेगा वो इसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा. सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कह दिया कि इसकी 10 m है, तो वो टाइम जिसके अंदर इसकी 5 m रिएक्ट कर जाएगी वो कहलाएगा इसका हाफ लाइफ पीरियड. तो हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड. अब देखिए हाफ रिएक्ट कर गया तो हाफ रह गया. बहुत सारी बुक ऐसा लिख देती हैं वो टाइम जिसके अंदर इसका हाफ रह जाए, तो वो नहीं लिखेंगे आप. उसका रीज़न है आगे आपने जैसे यहाँ पर पढ़ा है टी हाफ, और इसको हम डिनोट किससे कर देते हैं, ये हम डिनोट करते हैं इसको टी हाफ से डिनोट कर देते हैं हाफ लाइफ पीरियड को. आगे आप ये भी पढ़ेंगे T3/4 ये क्या होता है, T2/3 ये क्या होता है. इस टाइप से आप पढ़ेंगे इसके अंदर. अगर ये वाली चीज़ आप पढ़ते हैं T1/4 क्या होता है. अब देखिए अब बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर रिएक्टेंट का हाफ रह गया, यानी हाफ रह जाता है. वो चीज़ ठीक है क्योंकि हाफ रिएक्ट कर गया तो हाफ रह जाएगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको इस फॉर्म में याद करें कि वो टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट का हाफ रिएक्ट कर गया. अब यहाँ पे क्या कहेंगे, वो टाइम जिसमें 3/4 रह गया, नहीं रिएक्ट कर गया. ये पर्टिकुलर आपको ध्यान देना है यहाँ पर. तो इसलिए इसी डेफिनेशन को हाफ लाइफ पीरियड वाली जो डेफिनेशन है इसी को आप कैसे याद कर लेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का हाफ रिएक्ट कर जाता है. उसी तरह T3/4 क्या है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 3/4 रिएक्ट कर जाएगा. और ये क्या है T2/3 वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 2/3 रिएक्ट कर जाएगा. और T1/4 क्या है,
वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 1/4 रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको, अदरवाइज अगर वो याद रखेंगे तो आप यहाँ भी ऐसा ही कहेंगे कि 3/4 रह जाएगा नहीं, रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे हाफ लाइफ को ही ऐसे याद कर लो कि वो टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट का हाफ रिएक्ट कर जाएगा उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए हाफ लाइफ पीरियड को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हाफ लाइफ पीरियड को? अभी हमने आपको बताया हाफ लाइफ पीरियड क्या है, जिसमें रिएक्टेंट का हाफ रिएक्ट कर जाए। अगर आपके पास टाइम जो है ये, अगर आपके पास है टी हाफ रिएक्ट कर गया, तो इनिशियल का हाफ रिएक्ट कर गया तो रह कितना जाएगा? इनिशियल का हाफ ही रह जाएगा ना। और सी हम क्या लेके चलते हैं? सी इज द कंसंट्रेशन एट इन टाइम टी, एंड इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ देन सी विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा। यही लिखेंगे हम, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाएगा, यहाँ पर यही लिखेंगे। तो ये इक्वेशन आपके पास इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी इसके लिए? के इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी, एंड इफ t is equal to t half, in that case c will be equal to c naught half. So put here t half will be equal to c naught minus c naught by 2 divided by k, and will be equal to c naught by 2k. So it means t half will be equal to c naught by 2k. And this is the equation for half life period. तो half life period is equal to c naught by 2k आपके पास आ जाएगा, ये हम लिखेंगे। और अगर गैसियस रिएक्टेंट हो तो गैसियस रिएक्टेंट के केस में हम क्या लिख देंगे? इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हम क्या लेंगे? इन केस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट वी विल टेक गैसियस रिएक्टेंट के केस में क्या हो जाएगा? सी नोट की जगह क्या लेंगे हम? प्रेशर लेंगे। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2k। ये किसके केस में आ जाएगा? अगर आप प्रेशर लेकर के चलते हैं तो यह इक्वेशन बन जाएगी, ये ध्यान रखेंगे प्रेशर के केस में। अब हम ये भी कह सकते हैं टू क्या है? कांस्टेंट है। के भी क्या है? कांस्टेंट है। सो वी कैन से T half is directly proportional to initial concentration for zero order reaction. Half life period of zero order reaction is directly proportional to initial concentration, we can say. This is directly proportional to initial concentration. And if we plot a graph between T half and initial concentration, अगर हम T half अगर टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास? ये देखिए, इस टाइप से आपके पास ग्राफ आ जाएगा। और ये ग्राफ किसके बीच लेकर के चले आप? टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनके बीच लेकर के चले। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ? स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k। यू कैन टेक फ्रॉम हियर ना। आपने ग्राफ किसके बीच लिया है? टी हाफ वर्सेस सी नोट के बीच ग्राफ लिया है, तो स्लोप क्या आ जाएगा? 1/2k। देखिए इक्वेशन उसी टाइप की आप कहते वाई इक्वल टू mx प्लस सी इसमें यानी इंटरसेप्ट नहीं तो ओरिजिन से जाएगा। तो ग्राफ किसके बीच बन गया? ये आपके पास आ गया y, ये आपके पास आ गया x, और ये क्या आ गया आपके पास m, दैट इज स्लोप 1/2k। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर? स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k। ये स्लोप आ जाएगा इसके अंदर। तो ये ग्राफ किसके बीच है? टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। 3 ग्राफ आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तीनों ग्राफ का पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी आपने ग्राफ पढ़े,
ये वाला देखिए यहाँ पर, ये वाला ग्राफ आपने पढ़ा था, ये ग्राफ किसके बीच पढ़ा है आपने, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म इक्वेशन से ग्राफ लिया था आपने, सी कंसंट्रेशन सी एट एनी टाइम टी, उसके बीच ग्राफ पढ़ा था, इसका स्लोप इजिकल टू क्या आ गया था -k। फिर आपने ग्राफ किसके लिए पढ़ा था, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, जो कि पैरेलल आ गया था जीरो ऑर्डर के लिए। और यहाँ पर अभी जो आपने ग्राफ पढ़ा है ये किसके लिए पढ़ा है आपने, हाफ लाइफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ये ग्राफ पढ़ा है। 3 ग्राफ आपने पढ़े। कोई भी ग्राफ एग्जाम में एक दे करके और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताइए ये कौन सा ग्राफ आएगा, ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपके पास ग्राफ है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। एक ग्राफ और है इसके अंदर, वो भी आपको अगर हम बताएं, ये देखिए अगर हम ग्राफ बनाए रेट वर्सेस टाइम के बीच, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, रेट वर्सेस टाइम के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अब हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड्स विद कांस्टेंट रेट विद टाइम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड्स विद कांस्टेंट रेट विद टाइम, टाइम के साथ साथ वो कांस्टेंट रेट पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए ये ग्राफ आएगा इस टाइप का, ये ग्राफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ क्या लिया आपने, रेट वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर क्या लिया है हमने, टाइम। तो टाइम के साथ साथ देखिए रेट क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। तो इफ़ यू प्लॉट between rate and time for a zero order reaction and we know that zero order reaction proceeds with constant rate with time, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा at the end of reaction क्या होगा, what will happen at the end of reaction, at the end of reaction, at the end of reaction the rate will drop to zero, at the end of reaction the rate will drop to zero, रिएक्शन के एंड पे देखिए रेट ड्रॉप कर जाएगा जीरो पे, रिएक्शन के एंड पे। वाई, क्या रीजन है इसका, जो रेट जो है रिएक्शन के एंड पे ड्रॉप कर गया जीरो पे, रीजन बिकॉज नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट, बिकॉज नो रिएक्टेंट इज लेफ्ट। तो ये जो यहां पर आपके पास है ये कब आएगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन, at the end of reaction the rate will drop to zero because no reactant is left. Now we will talk about the unit of rate constant, unit of rate constant for zero order reaction। आपको पता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो यूनिट है वो क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड कंसंट्रेशन में लेके चले। तो अब यहाँ से निकाले तो क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आ गया आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए, K इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी डिवाइडेड बाई टी। सी इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, सी इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और सी नॉट माइनस सी ये मैंने कर दिया एक्स बाई टी। व्हाट इज एक्स, एक्स को अगर आप यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो एक्स आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, एंड इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर, यू कैन राइट मोल पर लीटर and divided by time, and the unit will be mole per liter per time, and this is same that you have studied। ये आ गया आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अगर आप किससे निकाल के चलते हैं, अगर इसको आप निकालते हैं इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, यही इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन। तो इससे भी अगर हम के की यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या आ गई आपके पास, वही यूनिट आ गई मॉल पर लीटर पर टाइम, यही वाली यूनिट आ गई है। देखिए इसमें हम निकाल के चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं टू कैलकुलेट द टाइम टेकन for
zero order reaction. Calculate the time taken for zero order reaction. Zero order reaction के लिए time taken for zero order reaction to complete. तो यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट. देखिए जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास रिएक्टेंट क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. रिएक्टेंट तो आपके पास होगा ही नहीं. तो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट, when the reaction is complete, then you can say C will be equal to 0, and we have integrated rate equation for zero reaction C naught minus C divided by T. और अगर T आपके पास कंप्लीट होगा, दैट इज रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम लिख दें T 100% कर दें. रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो T 100% विल बी इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाई K, बिकॉज एट दैट टाइम C विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा. तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये आपके पास आ गई टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट. यही आ जाएगा आपके पास. इस तरह से हम इसमें निकालेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिएक्शन के कंप्लीट होने पे क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उस दौरान कंसंट्रेशन क्या बचेगी? 0. तो यहाँ पर टाइम अगर आपके पास 100 है, टी कोई साइड लेके जाए, के कोई साइड लेकर के आए, और टी अगर 100 हो गया तो सी क्या हो गया आपके पास? 0. तो इक्वेशन क्या बन गई? टी 100% इज इक्वल टू सी नॉट बाई के आ जाएगा. इसी तरह देखिए और हम अगर इसमें निकाल लें तो ये निकालिए. Calculate the time taken for 3/4 of the reaction to complete. That is T 3/4, and also and compare with T 1/2. T 1/2 के साथ उसे कंपेयर करें. टाइम निकालें आप कि 3/4 कंप्लीट होने के लिए कितना लगेगा, और उसको T हाफ से आप कंपेयर करें. तो देखिए ये आपको हमने बताया था कि T 3/4 का क्या मतलब है? वो टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट का T 3/4 रिएक्ट कर जाएगा. अगर आपके पास if T इज इक्वल टू T 3/4, यानी ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 रिएक्ट कर जाएगा. यही है. तो इसका मतलब C क्या हो जाएगा? C आपके पास रह जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4. यही रह जाएगा. T अगर 3/4 है तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि 3/4 इनिशियल का रिएक्ट कर गया, तो कितना रह जाएगा? और C क्या है? जो रह गया टाइम T पे जो रह गया तो कितना रहेगा? ये रह जाएगा 1/4 इनिशियल कंसंट्रेशन का. और इक्वेशन आपको पता है K इज इक्वल टू आपके पास क्या है? K इज इक्वल टू C नॉट माइनस C डिवाइडेड बाई T फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड इफ T इज इक्वल टू 3/4, T को यहाँ लेके जाइए तो C नॉट और C क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 1/4 ऑफ द C नॉट एंड डिवाइडेड बाई K, एंड दिस विल बी इक्वल टू C नॉट माइनस C नॉट बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3/4 C नॉट बाई K. इट मीन्स T 3/4 विल बी इक्वल टू 3/4 C नॉट बाई K. ये आपके पास आ जाएगा.
अब देखिए टी हाफ जब आप निकाल रहे थे तो यहाँ पर क्या था 1/2 सी नॉट बाई के एज इट इज़ था। इसी तरह टी 3/4 निकाला तो यहाँ पे क्या आपके पास 3/4। देखिए 3/4 टी 3/4 का क्या मतलब है, वो टाइम है ये टी 3/4 का मीनिंग क्या है, वो टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट का 3/4 रिएक्ट कर गया। इनिशियल आप कितना लेके चले सी नॉट, और अगर इसका 3/4 रिएक्ट कर गया तो रहेगा कितना, इसका जो रहेगा वो सी है, तो सी कितना रहेगा इनिशियल का 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पे सी की जगह हम 1/4 सी नॉट लिख दें जब टाइम आपके पास 3/4, और सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 4 इजगल टू क्या आ जाएगा 3/4 सी नॉट बाई के, यही इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पे पुट करेंगे तो टी 3/4 इजगल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/4 सी नॉट के, ये आपके पास आ जाएगा। और अब दूसरा इसमें यह था कि आपको ये कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना आपको टी हाफ से। अब टी हाफ आप पढ़ चुके हैं, टी हाफ आपके पास क्या आया था, टी हाफ आपके पास है, टी हाफ आपके पास क्या है, टी हाफ आपके पास आया था टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के, ये आपके पास टी हाफ आया था। टी हाफ आपके पास ये है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज टी 3/4, दिस इज टी 1/2, ये टी हाफ और ये टी 3/4। आपको क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो इस इक्वेशन से, जो ये इक्वेशन टी 3/4 इसको डिवाइड कर दो टी हाफ से, देन वी विल गेट क्या मिलेगा हमें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी 3/4 डिवाइडेड बाई टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 सी नॉट बाई के, और इसको डिवाइड आपने कर दिया सी नॉट बाई 2 के से, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू ये आ गया 3/4 सी नॉट बाई के, और ये आ गया इंटू 2 के डिवाइड बाई सी नॉट। तो आपको पता है सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, 2 जहाँ पे ये गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1.5। सो यू कैन राइट टी 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं, ये जो दिया है रिलेशन, इस तरह से कोई भी रिलेशन दे करके आपसे निकलवा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, integrated rate equation for zero order reaction, and tomorrow we will discuss about the integrated rate equation for first order reaction.